So welcome and good morning. And so it's been a long journey. I think it's been more than 6 months that doing these sessions. And today is going to be the last session of this series. And hopefully I have added some value to all of you who have been attending it. And so last chapter जो हमने किया था, which happened to be like celebration of Women's Day. We were talking about how can you acknowledge yourself, because we are being grateful to others. इतने दिन से जो कुछ सीख रहे हैं उसमें हमने सीखा how to be grateful for our health, how to be grateful for our money, how to be grateful for our relationship, and जो लोग हमें सर्व करते हैं उनके लिए कैसे हमने ग्रेटफुल होना है. जैसे हमारे there will be people who come to serve us, whether people at home or we are traveling by cab or rickshaw. तो वो लोग हमें सर्व कर रहे हैं, सब्जी वाला, fruit wala, all these people are serving us. And we learned how to pay gratitude to each one of them. जो सड़क पे झाड़ू लगाते हैं, सबसे बड़ा काम वो करते हैं सुबह सुबह उठ के, उनको gratitude देना, and go to a restaurant, people who are actually serving you, आपसे ऑर्डर लेके जा रहे हैं, आपको सर्व कर रहे हैं, आपको बिल दे रहे हैं, all those people. So we were looking at all the opportunities to gather currency of gratitude, कि हम अपने अकाउंट में जितना हो सके उसको हम जमा करते जाएं, है ना? And we have been paying gratitude to all the people. We have been paying gratitude to the food we are eating, to the water we drink, सांसें जो हम ले रहे हैं, एयर के लिए, फुट स्टेप्स के लिए, कितना कुछ हमने सबके लिए ग्रेटिट्यूड सीखा. But we forgot to pay gratitude to the most important person in life, that is me. अपने आप को हमने ग्रेटिट्यूड कभी नहीं दिया, है ना? क्योंकि हम हमेशा से यही सीखा है कि कीप डूइंग इट फॉर अदर्स, पुट अदर्स फर्स्ट. तो हमने सारी जिंदगी वही किया है. And we have been, ignoring ourselves. We have not been acknowledging ourselves. We have not been appreciating ourselves. So last chapter, like when we had the session on last Monday, so what we talked about was how to start appreciating yourself. Every day in the morning, say, I love you. Look into your eyes. End of the day, whatever you've done during the day, to be accomplished kiya hai, pat your back for that. कि आज मैंने इतना कुछ किया. और कोई सबसे अच्छा काम किया हो जिसके लिए किसी और ने ना एक्नॉलेज किया हो, बट आपको लगता है आपने बहुत अच्छा किया. हो सकता है खाना बहुत अच्छा बनाया, हो सकता है शॉपिंग करने गए आपने बहुत अच्छी डील आपको मिल गई हो. एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सुबह से लेके शाम तक हम बहुत बहुत कुछ करते हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके लिए हम अपने आप को एक्नॉलेज कर सकते हैं, बट वी डोंट डू इट. So last week when we talked about it, we talked about start acknowledging yourself. Start appreciating yourself. And I had requested all of you to write 10 good things about yourself जो आपको बहुत पसंद है अपने बारे में. हो सकता है भूल भाल गए हो, बट सोचो आप में ऐसी कौन सी 10 अच्छी बातें हैं जिसके लिए आप अपने आप को एक्नॉलेज कर सकते. हो सकता है आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो सकता है आपकी आंखें बहुत अच्छी हो सकता है आप लोगों से बात बहुत अच्छे से करते हो सकता है आप लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हो सकता है यू आर अ वेरी गुड लिसनर. सब अपनी कहानी आपको सुना देते हैं आके और आप सुनते हो आराम से. हो सकता है आप बहुत अच्छी बीवी हैं. You look after your husband, you love him so much, you take care of all his needs. Maybe you're a very good mother, you dote on your children. Maybe you're a very good homemaker. आपका घर second span रहता है, आपके घर में हर चीज प्रॉपर जगह पे होती है. So whatever it is, जो भी चीज आपको लगता है आप में अच्छी है, उसको एक्नॉलेज करना है. वो एक दिन नहीं करना है. You have to do it every single day. Pay gratitude to your own self. So appreciation and acknowledgement is a part of gratitude.
तो जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो आप उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं and you saw somebody who's wearing a beautiful sari, and if you go across to that person and say, hey, I just wanted to tell you you're wearing a very beautiful sari, just loved it, you will see the twinkle in their eyes. They will feel so happy, and you are feeling happy because you appreciated something which is beautiful. I do this many times. I will just walk across to anybody, like stranger भी हो जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ, but that person is like wearing something or looking beautiful. I remember I was going to Kochi, and हम लोग फ्लाइट में चढ़ने के लिए लाइन में लगे हुए थे. मेरे आगे एक लड़की खड़ी थी. She was so beautiful, you know, she was Kashmiri, and she was standing next to me, and I just looked at her and said, "You're so beautiful." And you know, she blushed, but she smiled. And just because of that, you know, that ice was broken and I could connect to her. And we exchanged number, and you know, once in a while I talked to her. But just because I appreciated her, I paid gratitude to whom? To the Almighty, यार. हम जब भी किसी को gratitude दे रहे हैं ना, ultimately वो उसी को जा रहा है. क्योंकि हर चीज तो उसी ने बनाई है ना. So that was about the chapter we covered last week. तो आज हम बात करने वाले हैं how to transform your mistakes into blessings. अगर हमने ये सीख लिया ना, तो हम जितना भी गिल्ट लेके चलते रहते हैं ना, हम उस गिल्ट से आजाद हो जाएंगे. So this chapter is also about you. I mean, about me, about each one of us. When a child start learning to walk, वो गिरता है, कई बार कुछ तोड़ भी देता है, उसका गिरने से कुछ खराब भी हो जाता है. But we don't say anything to that. कोई बात नहीं, अगली बार चलना, दोबारा से चलो. कहते हैं ना उसको, साइकिल चलाना सीखता है, कितनी बार गिरता है. डू वी टेल हिम नहीं अब साइकिल नहीं चलाना तूने? नहीं कहते ना, हम उसको इनकरेज करते हैं. दैट लर्न फ्रॉम इट. कोई बात नहीं. नो, जब वो ABCD लिखना शुरू करता है, हम सबने सीखा है ना. ए को कितनी बार, माय मदर यूज्ड टू से मैं 7 उल्टा लिखती थी. तो कितनी गलतियां कर करके हमने सीखा. क्या आज मैं 7 उल्टा लिखती हूँ? नहीं, सीख लिया ना. तो एवरी मिस्टेक दैट इज, यू नो, वी आर डूइंग इन आवर लाइफ, जो भी हमारी जिंदगी में आ रही है मिस्टेक जो हम कर रहे हैं, इट्स कमिंग फॉर सम पर्पस. इट्स कमिंग टू टीच अस समथिंग. जब भी हमसे कुछ गलती होती है, हमें उससे सीख लेके आगे बढ़ना होता है ना, कि उसको पकड़ के बैठ जाना, हाय मैंने इसे कैसे कर दिया. हाउ हाउ कम आई नो आई वाज सो स्टूपिड. मैं कितनी बेवकूफ थी, या मैं कितना बेवकूफ था कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी. आप उसको पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं, उससे सीख लेके आगे बढ़ना होता है. तो दिस चैप्टर इज अबाउट दैट. पर हम बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे ही हमने गलतियां की होती हैं जिसको हमने आज तक माफ नहीं किया अपने आप. तो आज का चैप्टर इज अबाउट फॉरगिविंग योरसेल्फ फॉर व्हाटएवर मिस्टेक्स यू हैव डन एंड लर्न फ्रॉम इट. अब सबसे पहले अगर आपने कोई मिस्टेक की है, आप और उसके लिए गिल्टी फील कर रहे हैं, या उसके लिए आप पकड़ के बैठे हैं उस चीज को, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? टू ओन इट अप. मेनी अ टाइम्स वी एक्चुअली आर ब्लेमिंग अदर्स. उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई. वो वो मेरी जिंदगी में आया, या उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा बॉस बहुत खराब है, की वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया. वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समबडी एल्स टू ब्लेम, क्योंकि हमें सिखाया यही गया बचपन से. याद है ना, बचपन में जब बच्चा गिरता है तो मम्मी पापा क्या करते हैं? जमीन को मार के, इसने मारा तेरे को, देख मैंने इसको मार दिया, कोई बात नहीं, उठ जा उठ जा. तो हमने क्या बताया, इनडायरेक्टली क्या समझाया उसको? तेरी कोई गलती नहीं है, ये तो जमीन ऐसी है, इसने तेरे को गिरा दिया. एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स वी हैव लर्न टू ब्लेम अदर्स. एंड हमने तो अब तो PhD कर ली हुई है इसमें.
मास्टर बन गए हम इसमें. एनीथिंग हैपेंस, वी पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स. इसकी वजह से, इसकी वजह से. दैट्स व्हाट वी डू. बट अगर हमें अपनी मिस्टेक्स को ट्रांसफॉर्म करना है, सबसे पहले तो उनको ओन अप करना पड़ेगा कि मेरी मिस्टेक है. इट्स माय मिस्टेक. ओन इट अप. फॉर एग्जाम्पल, I was in a relationship with a person and शुरू शुरू में बहुत अच्छा था. उसके बाद I suffered so much. I suffered like बहुत ज्यादा सफर किया मैंने. मेंटली बहुत ज्यादा, you know, अपने आप को मैंने टॉर्चर किया. But do I blame that person? No. It was I who allowed him to, you know, make me feel like that. मैंने वो उनको हक दिया ना, वो पावर उनको दी. So it was my mistake, not that person's mistake. So once I take the ownership of that, I can work on it. क्योंकि पावर मेरे पास है. अगर हम दूसरे को ब्लेम करेंगे तो पावर तो दूसरे इंसान के पास है. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. अब रिमोट कंट्रोल आपके हस्बैंड के पास है या आपकी वाइफ के पास है. यू कांट कंट्रोल विच चैनल टू प्ले ना. यू कांट, बिकॉज पावर उनके हाथ में है. unless he is listening to you and you tell him that सुनो ये लगा दो and he says okay. Otherwise he would watch whatever he wants to watch. Similarly, when you give the power to another person, you have no control over it. So take the control back into your hands. First of all, whatever happened, it could be yesterday, it could be sometime in your life, which is still hurting you. कि मैंने ऐसा कैसे किया? You know, when I was preparing for this chapter, I was just thinking about it. So 2 years ago, there was something which happened, and I was not able to let go of it. I was still holding on to कि मैंने ऐसा करा कैसे? मतलब मैं ऐसे कर कैसे सकती थी? I was not able to forgive myself for that, and it was haunting me. कभी-कभी मतलब जैसे ही मैं कुछ करने लगी हूँ या कुछ ऐसी कोई बात हो जाती थी, it just come back. It was so much of pain. It used to give me so much of guilt. And आपको मालूम सबसे जो खराब इमोशन है वो है गिल्ट. सबसे ज्यादा खतरनाक है वो जब हम किसी गिल्ट में रहते हैं. So I was feeling very guilty about it. But when I was preparing for this chapter, I actually did the same exercise. And I'm feeling so much relieved कि मैंने कितना कुछ सीखा इस गलती से. पहले तो सबसे पहले कि मेरी गलती है, not the other person. अब जब उसको ओन अप किया तो आई कुड सी थ्रू इट कि मैंने क्या क्या किया और इसमें से मैंने क्या क्या सीखा है. So that is the chapter about today, that what all have we learned from that mistake. Yeah. अगर हम उसको मिस्टेक से कुछ सीखते नहीं है ना, तो वो हमारे साथ बार बार होता है. कितनी बार ऐसे होता है ना कि हम एक ही चीज हमारी जिंदगी में बार बार होती चले जाती है. एक ही तरह के इंसान हमें आके परेशान करते चले जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody is working in some organization and the boss is not, you're not very good terms with the boss, and आपने वहां से जॉब छोड़ी, जहां आगे गए वहां भी वही हुआ. मेरे एक कुलीग थे, लाइक दिस वाज इन 2011 to 14 के बीच में. वी वर्कड इन सेम ऑर्गेनाइजेशन. ही वाज द हेड ऑफ एचआर एंड एडमिन, एंड ही यूज्ड टू डू एक्स्ट्रा. चलो बॉस को खुश करने के लिए मैं ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, तो कुछ मतलब अपनी तरफ से ही यूज्ड टू डू एक्स्ट्रा कि लेट मी डू दिस पार्ट आल्सो. उनका मतलब कियारे भी नहीं है. ही यूज्ड टू डू ऑल दैट, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, ही वाज आस्क्ड टू लीव. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट ही वाज आस्क्ड टू लीव. I came to know that he's leaving, and he's been asked to leave. उसके बाद उन्होंने 3 जॉब्स चेंज करी. सेम
He used to go at the same level, HR head and all. Every organization he was asked to leave. So I told him once, I said, why don't you just sit down and think about it? What is it that you are attracting so much into your career every time? कुछ तो ऐसा है ना, otherwise हर बार ऐसा क्यों होता है? But then he was not, coachable, and he didn't want to work on himself because अपने ऊपर काम करना बहुत मुश्किल काम होता है. दूसरों के ऊपर काम करना तो आसान होता है क्योंकि उनके ब्लाइंड स्पॉट्स हमें दिखते हैं. अपने ब्लाइंड स्पॉट्स ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, मेहनत लगती है और सब लोग नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें मक गंदगी निकल के आती है ना अपने अंदर से, वो देखने नहीं चाहते हम तो अच्छे अच्छे बने रहना चाहते हैं. So he didn't want to do that. What I want to say is that when we are not learning from our mistakes, we will keep doing the same mistake again and again. You must have come across people जो एक गलत रिलेशनशिप में फंस गए, उसके बाद वहां से निकले, फिर दूसरे रिलेशनशिप पे गए तो वहां भी वही सब कुछ हुआ. I know somebody who got married thrice. हर बार उसकी शादी टूटी है. क्यों भाई? सीखो ना. Where are you going wrong? Because law of attraction says आप जो जिस चीज को बार बार ज्यादा सोचते हो करते हो वही आपकी जिंदगी में हो रही है. जब तक आप सीख के उसमें से निकलोगे नहीं, वो होता रहेगा. कुछ लोग पूरी जिंदगी एक फेलियर के बाद दूसरा फेलियर, तीसरा फेलियर, पूरी जिंदगी फेलियर से ही डील करते चले जाते हैं बिकॉज वो सीखते नहीं है. सो आज का चैप्टर जो है हमारा, दैट इज एक्चुअली टेलिंग अस अपनी मिस्टेक से सीख कर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं. Are you guys interested to know how to do it? कोई इंटरेस्टेड है या सिर्फ आपको लग रहा है मैं ज्ञान बांट रही हूँ और आप बस पकड़ते जाते हो? We are interested. Good. क्योंकि अगर हमने ये सीख लिया ना तो गलतियां तो हम करेंगे ही बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, है ना. तो गुरबानी में लिखा है कुल्लन अंदर सबको अपुल गुरु करता, सिवाय परमात्मा के कोई ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता. तो हम तो गलतियों के पुतले हैं, हम तो गलतियां करेंगे ही करेंगे, पर क्या हम उससे सीख लेके कुछ बेटर बन सकते हैं, अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं? तो अगर हम आज ये सीख लेंगे तो इट विल रियली हेल्प अस बिकॉज दैट इज व्हाई दिस इज द लास्ट चैप्टर. एक्चुअली इट इज द सेकंड लास्ट चैप्टर बिकॉज वो जो सेल्फ लव वाला चैप्टर था वो लास्ट था, but because of the Women's Day I did that first and I'm doing, because unless you are able to own up your mistakes, you will not be able to acknowledge yourself, you will not be able to love yourself. So whenever you are actually doing this, you will be able to acknowledge yourself that you are human. गलती हो गई, अब इससे मैं सीख के क्या कर सकती हूँ आगे, या क्या कर सकता हूँ, राइट? तो हमने जब भी कुछ ऐसी मिस्टेक की, there are two questions we have to ask ourselves, which are, what did I learn from it? इससे मैंने सीखा क्या? And second question is, what good did it bring in my life? इससे अच्छा क्या हुआ मेरी जिंदगी में? कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है. हम कहते हैं हाई ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा तो उसमें भी कुछ अच्छाई होती है ना, या कुछ गलत हो जाता है तो उससे भी कुछ अच्छा निकल आता है. तो वी ऑलवेज से ओ दिस हैज बीन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. कहते हैं ना कई बार इट हैज बीन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. तो आपने ये दो क्वेश्चंस अपने आप से पूछने कि मैंने क्या सीखा, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक, व्हाट द मिस्टेक आई डिड, उससे मैंने क्या सीखा. एंड नंबर 2, इससे अच्छा क्या हुआ मेरी जिंदगी में. फॉर एग्जाम्पल, जब somebody is speeding up और अचानक से कहीं से पुलिस वाला निकल के आ जाता है तो क्या थॉट आता है, मामे कहीं भी छुप के बैठे रहते हैं, अचानक निकल के आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता अचानक कहां से निकल के आ गया, अभी तक तो कोई नहीं था यहाँ पे. जैसे ही आपने स्पीड अप किया, जैसे ही आपने रेड लाइट क्रॉस की, अचानक सामने से निकल आके आ जाते और आपका चालान.
तो हम क्या करते हैं, हम पुलिस वालों को देते हैं गालियां भर भर के। तो पैसा कमाने का धंधा बना रखा है। होली आ रही है ना, अब इनको पैसे चाहिए होली मनाने के लिए, तो ये क्या करेंगे, यही तो करेंगे। दिस इज द फर्स्ट थॉट विच कम्स टू आवर माइंड। आता है, नहीं आता है? मेरे तो आता है, क्योंकि हमें सिखाया बताया यही गया कि पुलिस वाले पैसा खाते हैं और वो चालान इसीलिए करते हैं कि अपनी जेब में पैसे डालें। स्पेशली होली दिवाली के आसपास हो तो पक्का यही है, इनको तो अपनी होली मनानी है, अपनी दिवाली मनानी है। हम अक्सर यही सोचते हैं। बट आई रियली वांट यू टू लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस। इस चैप्टर के हिसाब से अब आप देखिएगा, अगर कोई पुलिस वाला अचानक निकल के आया है, तो उसने आपका चालान काटा, तो आपको लगा देखा मेरे साथ बुरा हो गया, मिस्टेक कर दी मैंने, देख लेता ना मैं पहले से, या इसको पहले कहीं से मुझे नजर पड़ जाती इसके ऊपर, तो मैं क्रॉस नहीं करता रेड लाइट, वेट कर लेता। कहते हैं ना वैसे। सो व्हाट इज इट दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक? एनीबडी वांट्स टू से समथिंग? हमें 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है कि हमने क्या इसमें से सीखा, हमको क्या ब्लेसिंग्स मिली हैं इस एक सिंपल सी मिस्टेक से। एनीबडी वांट्स टू शेयर व्हाट कम्स टू योर माइंड? आपने रेड लाइट क्रॉस की और सामने से पुलिस वाले ने आपको आके पकड़ लिया और आपका चालान काटा। आपने ये 2 क्वेश्चंस का आंसर करना है, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम इट, और अच्छा क्या हुआ। आप बोलोगे अच्छा तो कुछ भी नहीं हुआ, पैसे गए। एनीबडी, कोई तो बता दो, क्या दिमाग में आ रहा है? Hey, good morning. गुड मॉर्निंग। When I learn from my mistakes, when I cross the red light, I imagine that what have I done, and of course I do not drive, but I should be careful next time, Okay. and I should be grateful for what I have. Thank you. Okay, thank you so much. There was another person who was about to say something. Yeah, it was me. I would say that, never mind, I made the mistake, but this is what I learned, that I will not repeat this mistake again. I will be more careful next time. That is Careful of what? Careful of what? Careful of driving and seeing the signals. And I don't know what you said. वो speed breaker आया ना बीच में? नहीं, red light cross किया. Red light cross किया. हाँ, so I would watch the signals and not just drive, endlessly in my own this. I will be more mindful of what I'm doing. So then I would see the signal and I would stop naturally. But because my thoughts were on something, Yes. I sort of just drew ahead. Yes. Thank you so much for sharing. So whenever you have made any mistake, past में किया, near past में किया, बहुत पहले किया, but अभी भी तंग करती है वो चीज कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया था. So what are you supposed to do today is you're supposed to write down 10 good things, 10 blessings which you have learned from this, या आपके साथ जो अच्छा हुआ. For example, about this police thing, I will just read out to you what are the 10 blessings and how you're supposed to write. I'm so grateful to the police to protect me from harming myself. Collision हो सकता था ना, दूसरी तरफ से गाड़ी आ सकती थी और एक्सीडेंट हो सकता था. I'm so grateful to police. I haven't one second. Yeah, I am being honest with myself that my thoughts were on something else. As you rightly said, that you were thinking of something else when you were driving. And mindfully आपने नहीं देखा कि रेड लाइट है और आप निकल गए. And it is so surprising, हम लोग ना ड्राइविंग में भी मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं. Now one day I was driving to office, and I was just thinking, I was observing myself that I am driving. मेरी आंखें गाड़ी सड़क पे है, मैं वो भी मैनेज कर रही हूँ, और मेरे उसमें चल रहा था, म्यूजिक चल रहा था, मैं म्यूजिक भी सुन रही हूँ,
इसके अलावा भी दिमाग कहीं और जा रहा है, एंड आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स। कैन यू इमेजिन कितनी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं हम? एंड सडनली समथिंग कम्स एंड देन यू कम इनटू योर सेंसेस, अरे ये क्या हुआ? सो he says, I am so grateful to the police that I am being honest to myself कि मैं तो कुछ और ही सोचता हुआ चल रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया. Then he says, I am grateful to the police for that I was being foolish कि मैं तो पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, है ना? बेवकूफी कर रहा था कि मैं तो पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, निकल जाऊंगा. And I am grateful to the police that it is a wake-up call. Like you said, I will not cross signals. It's a wake-up call. So it's a wake-up call. And I'm grateful to the police. I was thinking of getting unnoticed and putting myself and others at risk. मुझे लगा था मेरे को तो पकड़ ही नहीं सकता कोई, मैं तो निकल जाऊंगा. अपने आप को भी रिस्क में डाल रहा था और बाकी लोग जो सड़क पे हैं, I was putting them also in, on risk. Then he also says that I am so grateful to the police that they are protecting us and they are looking into it that we reach home safely. हम अपनी फैमिली के पास सेफली पहुंच जाएं. I am grateful to the police that are protecting my family from getting hurt. मेरे जैसे कोई और चला रहा हो तो मेरी फैमिली को भी कुछ कर सकता है ना. मेरी फैमिली अगर सड़क पे है, मेरी फैमिली अगर मेरी गाड़ी में है और somebody else comes and hits, तो मेरी फैमिली को नुकसान हो सकता है. So I'm so grateful that they are protecting my family from getting harmed. So these are the kind of things you're supposed to think about. इसमें से अच्छा क्या हुआ है? वेकअप अलार्म है मेरे लिए, मुझे ऐसा आगे से नहीं करना है. या कुछ लोग होते हैं वो बार बार करते हैं. क्यों करते हैं? Because they are attracting that into in their lives, and till the time they learn a lesson, वो बार बार उनकी जिंदगी में होता ही चला जाता है और तब तक होता रहेगा जब तक वो लेसन नहीं सीखेंगे. कुछ लोग पूरी जिंदगी नहीं सीखते हैं तो वो पता नहीं अगले जन्म तक शायद चलता है उनका. पूरी जिंदगी नहीं सीखते हैं और बार बार वैसी ही ठोकरें खाते चले जाते हैं. क्योंकि पहली बार जब होता है तो थोड़ा होता है, पेन कम होता है. जब वो बढ़ जाता है अगली बार होगा तो पेन ज्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल, दैट फ्रेंड ऑफ माइन और कलीग ऑफ माइन, फर्स्ट टाइम व्हेन ही वाज आस्क्ड टू लीव, उसको लगा होगा छोड़ना कोई नहीं और मिल जाएगी, एंड ही मैनेज्ड टू गेट अ जॉब. बट जब वहां से भी उसको बोला गया तो पेन थोड़ी ज्यादा हुई होगी. यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है हर बार? इतना तो मैं काम करता हूँ, इतना मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, फिर भी ये मेरे साथ हो रहा है. तो पेन थोड़ी ज्यादा हो गई एंड जॉब ढूंढनी थोड़ी सी मुश्किल हो गई, बिकॉज रेफ चेक तो होता ही है हर जगह. एंड थर्ड जॉब में जाकर जब ये फिर से हुआ तो इमेजिन द पेन. बढ़ गई ना पेन कि अब क्या होगा. तीसरी बार हो गया, पता नहीं अगली जॉब में भी यही होने वाला है क्या, या मुझे जॉब मिलने वाली भी कि नहीं है. Finally he started something of his own because he didn't know what to do. उसको अगली जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी. So when he started something of his own, I take this as a learning for him. That he is not meant to be working with others. He should be starting something of his own and contributing in that sense. That's my interpretation. I don't know what he learned. When I'm looking at it, that is what is just crossed my mind. Maybe that is what his learning was. बट जब तक हमारी पेन इतनी बेयरेबल अनबेयरेबल नहीं हो जाती ना, हम सीखते नहीं है. ऐसे ही जो लोग सड़क पे स्पीड अप करते हैं या रेड लाइट्स बंक करते हैं, कितनी बार निकल जाते हैं और बड़ा हीरो समझते हैं अपने आप को, टिल द टाइम दे गेट हर्ट एंड देन दे रियलाइज इट कि मुझे नहीं करना है. क्योंकि वो पेन जो है जब बहुत बढ़ जाती है
तब जाके उनको समझ आती कि दिस इज द लर्निंग आई एम सपोज्ड टू टेक फ्रॉम दिस। तो पहली बार में क्यों ना सीख लें? अगर हमें पता है every mistake is here to teach us something so that we have a better life, why not learn from it in the first go itself? पर हम इंसान ऐसे हैं ना कि हमें इन सब बातों की समझ नहीं आती है, हम बार बार वही गलतियां करते चले जाते हैं। पर आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अगर कोई गलती करते हैं तो उससे कुछ सीख लेके आगे बढ़े, क्योंकि सीख तो हमें मिलनी है, वो ऊपर वाला हमें कुछ सिखाना चाह रहा है। अगर वो गलती हम बार बार कर रहे हैं तो कुछ तो वो सिखाना चाह रहा है। अब कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ देर से सीखते हैं, कुछ पूरी जिंदगी नहीं सीखते हैं। होता है ना, कुछ बच्चे बार बार फेल होते हैं स्कूल में, क्लास में बार बार फेल होते रहते हैं, ट्यूशन भी लगा दो, कुछ भी कर दो, वो नहीं पास होते, फिर कंपार्टमेंट आ जाएगी, फिर फेल हो जाएंगे। ऐसे भी होते हैं कुछ। एक बार अगर उनकी सप्लीमेंट आ गई, उनकी कंपार्टमेंट आ गई, दे डू एक्स्ट्रा एफर्ट टू पास, तो वो लर्निंग है उनके लिए कि आपने पिछली बार मेहनत कम करी थी, तो इस बार मेहनत करो और पास हो जाओगे, और वो हो जाते हैं पास। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी जितने भी मिस्टेक्स हम करते हैं वो हमारे लिए एग्जाम्स हैं। उस एग्जाम में हम पास होंगे कि नहीं ये डिपेंड करता है हमने क्या सीखा। If we don't learn, we will keep committing the same mistakes again and again, and unless we own it up, we'll not be able to do anything about it. We'll always keep blaming others about it. ये उसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ। For example, if that person, जो मेरा कलीग है, वो हर बार यही बोले ये तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, मैनेजमेंट की गलती है, मैनेजमेंट ने मेरे साथ ऐसा किया, मैनेजमेंट ने मेरे साथ ऐसा किया। So he is giving power to the management, and he is not learning from it कि उसको क्या सीखना था इससे। Similarly, हमारी लाइफ में जो भी मिस्टेक हमने की है, for example, what I was talking about my own mistake 2 years ago, which was still haunting me. To some extent, I was not blaming the other person. I was blaming myself only. But then वो blame and guilt कर तो रही हूँ ना, but learn तो कर नहीं रही थी उससे मैं। I was not committing that mistake again, that was sure, but I was not letting it go and I was not learning from it. But when I was preparing for it, I actually thought about 10 things which I have, gained out of that. And that actually set me free. इतना कुछ मैंने, ये सब इसलिए हुआ था कि मैं ये सब सीख जाऊं। ओके, सीख लिया, समझ आ गई मुझे। सो आज आपको भी यही करना है। यू हैव टू थिंक अबाउट वन सच मिस्टेक। आज की हो सकती है, कल की हो सकती है, बरसों की हो सकती है, जो आप पकड़ के बैठे अपने अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं। बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट यू ओनली। सो थिंक अबाउट वन सच मिस्टेक। और एक पे कर लोगे, समझ आ गया कैसे करना है, तो बहुत सारी मिस्टेक्स की है तो बहुत सारों के ऊपर भी कर सकते हैं। एंड यू विल फील लाइटर, यू फील एनर्जेटिक, एंड यू विल फील पॉजिटिव, राइट? तो आज आपने यही करना है। यू हैव टू थिंक अबाउट वन सच मिस्टेक which is still haunting you, which is still troubling you, which is still giving you some sort of a pain, because हर मिस्टेक कुछ ना कुछ पेन तो छोड़ती है। अब वो कितना पेनफुल है वो आपको पता हो। तो आपने आज उसके बारे में 10 गुड थिंग्स, ये 2 क्वेश्चंस को आंसर करते हुए 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है कि आपने क्या सीखा है इसमें से अच्छा क्या हुआ। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट? सेकंड क्वेश्चन, इसमें से अच्छा क्या हुआ? व्हाट गुड डिड इट ब्रिंग टू यू इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ दैट? सो इसको करने के बाद, क्योंकि आप अपने आप को माफ कर पाओगे, because you will be able to forgive yourself. That is how you will be able to acknowledge yourself. उसके बाद आप अपने आप को acknowledge कर पाओगे। Because अभी तो अपनी self talk यही है ना, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, I am not good, I am so stupid, people take me for ride, सब मेरा फायदा उठाते हैं। अगर कोई फायदा उठाता है तो आप फायदा उठाने देते हो।
होता है ना ऐसे कई बार, आपने किसी के साथ बिजनेस शुरू किया, वो आपको धोखा देके पैसा लेके चला गया, उसने मुझे धोखा दिया होगा, मानते हैं, बट आपने विश्वास किया ना, ओनरशिप इज ऑन यू, यू ट्रस्टेड दैट पर्सन। अब इससे क्या सीख सकते हो? या तो रोते रहो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने उसके ऊपर विश्वास क्यों किया, मेरे को इतना बड़ा धोखा मिला, मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया, वो सब लेके भाग गया। या तो इसी में पड़े रहो, या ये सोचो कि मैंने इससे सीखा क्या। ड्यू टू कहते हैं ना, ड्यू डिलीजेंस पहले करो, उस इंसान के बारे में पूरा पता करो, है ना, पुट डाउन एवरीथिंग ऑन पेपर, get it signed, get it registered. So many things will come up when you'll think about it. आंख मूंद के विश्वास नहीं करना है, ठोक बजा के देखना है, all those things will come to your mind. These are the learnings. Once you write them down, you will be able to get over it कि चल ठीक है, जो हुआ हुआ, तो आने वाला नहीं पैसा, कोई बात नहीं, मैंने ये सीखा ना, अब इसको कैसे लाइफ में अप्लाई कर। Sometimes it happens, you feel that, relationship में किसी ने धोखा दिया। I know couple of guys, जिनका डिवोर्स हुआ और उसके बाद they don't want to get married again. जैसे हमें करनी ही नहीं है शादी। But is that a solution? No. But that is their choice. Because life always gives us two choices every second, every second. हमारी हर चीज के लिए हमारे पास दो choices होती हैं। Choice तो उनकी है, वो नहीं करना चाहते। But they can learn from what happened in their previous marriage and start afresh. But choice है, right? Similarly, अगर आपको किसी ने बिजनेस में धोखा दिया है, तो your choice could be that I will go solo. I will not have a partnership with anybody. That could be your choice. After learning from that, कि मुझे ये समझ आया कि मुझे किसी और के साथ काम नहीं करना है, मुझे अपने आप ही सारा कुछ करना है. That could be the learning for you. So whatever it is, you just have to, I'm just giving you such, some examples so that it becomes clear for you कि करना कैसे है और क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसके लिए क्या मिस्टेक हो सकती है जिसकी वजह से आप परेशान हो या आज भी अपने आप को कोसते हो कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, विश्वास कैसे कर दिया उसके ऊपर, मैंने अपना सारा पैसा उसको कैसे दे दिया, कुछ भी हो सकता है. So just do that and it will help you. And if you learn this technique, how to do it, आप जो भी मिस्टेक्स करोगे, क्योंकि मिस्टेक्स तो हमने करनी है, वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ह्यूमन बीइंग है भाई, तो परमात्मा नहीं बोला है, करते जाओ, कोई बात नहीं, साथ साथ में सीखते भी जाओ और आगे बढ़ते जाओ. So that is the whole purpose of this session. Okay, now I'm going to talk about remember the magic. अब इस मैजिक को याद कैसे रखना है? हमने इतने महीनों में बहुत सारी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस सीखी है ना, बहुत सारी सीखी हैं. अब उसमें से कुछ याद है, कुछ भूल गई है, कुछ हल्की हल्की सी याद है ना, कोई बात नहीं. तो अगर हमें अपनी जिंदगी में इस ग्रेटिट्यूड को एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमने इसको क्यों किया है प्रोग्राम को? बिकॉज वी वांट टू मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन. हम अपने जिंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं ताकि हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी बनी रहे और उसकी वजह से हमारी जिंदगी हर रोज बेहतर होती चली जाए. दैट इज द होल पर्पस, राइट? सो हाउ टू कीप इट अलाइव इन योर लाइफ? आज के सेशन के बाद इस ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में अलाइव कैसे रखना है, हाउ टू कीप इट इन आवर डेली रूटीन, कि हमारी जिंदगी के हर रोज में, रोजमर्रा की जिंदगी में ये एक हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए. सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डू. एक तो आप जो 10 ब्लेसिंग्स रोज लिखते हो, यू कैन कंटिन्यू टू डू राइटिंग दैट. अब उसको लिखने के भी दो तरीके. One is that you write that you are grateful, and for what? Reason क्या है, किस लिए grateful हो? Like for example, I'm grateful to this glass for holding this water because I am able to keep sipping it.
ग्लास के लिए ग्रेटिट्यूड दूंगी तो आई एम ग्रेटफुल टू द ग्लास, तो कुछ नहीं आएगा मन में, बट बिकॉज इट्स होल्डिंग दिस वाटर विच इज यू नो क्वेंचिंग माई थर्स्ट, तो जब मैं इसके बारे में बोलूंगी तो वो क्वेंचिंग माई थर्स्ट इज द रीजन. So when you're writing it, you write, you are grateful for why, what for, because of. तो आपने वो लिखना है. 10 ग्रैटिट्यूड लिखने के बाद आपको हर एक ग्रैटिट्यूड जो आपने लिखा है उसको पढ़ना है, दिल से महसूस करना है, और उसके बाद बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. So this is one way of remembering it. आप इसको अपना डेली रूटीन बना सकते हैं. That first thing in the morning when you get up, you write down 10 blessings every single day और लिखें आप क्यों ग्रेटफुल हैं. उसके बाद 10 के 10 को एक एक करके पढ़ें, महसूस करते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोले. So this is one way of doing it. The other way of doing it is that you write down 10 blessings and you just write one line, I'm so grateful for this. And you can do that for the previous day. आपके पिछले दिन में क्या क्या हुआ उसमें से आप 10 चीजें लिख सकते. अगर आपको लिखने में मुश्किल होती कि आज क्या लिखूं, आज क्या लिखूं, सो यू कैन जस्ट थिंक अबाउट द प्रीवियस डे. जैसे आज अगर आप लिख रहे हो तो आप कल के बारे में सोचते हो, सोच के लिख सकते हो कल क्या क्या हुआ आपके साथ. आई एम सो ग्रेटफुल दैट I could attend one session. I learned so much from it. I'm so grateful to the person who actually, gave so much of knowledge. I'm so grateful to the internet. I could research on this and I got so much of information which I can use for my program. I'm so grateful to Vanita for making such a wonderful dish, which I really enjoyed. I'm so grateful for my bed for giving me such a peaceful, uh, rest, sleep, and all that. So आप कल के दिन के बारे में जो जो हुआ, किसी का फोन आया, आपने किसी से बात की, आप किसी से मिलने गए, जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है आप उसके बारे में लिख सकते हो. जस्ट वन लाइन, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस. इसमें आपको वाई लिखने की जरूरत नहीं है. आप कैन यू कैन जस्ट राइट आई एम ग्रेटफुल, एक सेंटेंस लिख सकते. ठीक है. सो दिस इज द अदर वे ऑफ डूइंग इट. एंड द थर्ड वे ऑफ डूइंग इट, आप बैठे हुए हो और आप सोच रहे हो कल मेरे साथ कितना अच्छा हुआ ना, आई एम सो ग्रेटफुल, I had this call which is giving me an opportunity, interact, and maybe I'll get a business opportunity, and I'm so grateful to this person for calling me up. आप बैठे बैठे ही अपने मन में gratitude दे सकते हो. So these are the ways you can do it. अब आप concentrated gratitude कैसे कर सकते हो? अब ये concentrated gratitude क्या होता है? जब आप किसी चीज पे कंसंट्रेशन करके ग्रेटिट्यूड देते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज डीलिंग विद हेल्थ इशू एंड दैट पर्सन वांट्स टू वर्क ओनली ऑन द हेल्थ, उसको बाकी सब चीजों के ऊपर नहीं है, उसको मनी के ऊपर नहीं काम करना, एंड उसको रिलेशनशिप के ऊपर काम नहीं करना, उसका फोकस सिस्टम सिर्फ हेल्थ इशू पे है कि मेरे ना किसी तरह से ये वाला इशू ठीक हो जाए, मेरे रिपोर्ट्स में ये वाली रिपोर्ट ठीक नहीं आई है, ये रिपोर्ट ठीक आ जाए, मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, या मेरा बैक एक ठीक हो जाए, या मेरा माइग्रेन ठीक हो जाए, या मेरे डायबिटीज का रिपोर्ट ठीक आ जाए. इफ दैट इज द पर्पस ऑफ इट, आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड उस तरफ फोकस करना चाहते हो, बिकॉज वेयर अटेंशन गोस एनर्जी फ्लोज, आप उसी पे फोकस करना चाहते हो. सो ऑल दो सेशंस जो हमने सिर्फ हेल्थ के बारे में की है, आप उसके ऊपर फोकस करके आप वही वाले असाइनमेंट्स कर सकते हो. या सो असाइनमेंट सारे के सारे बुक में दिए हुए हैं. एंड मैंने भी हर बार आपसे बताया ही आपको क्या असाइनमेंट करना है. बट इन केस यू वांट ओनली फॉर द हेल्थ, यू कैन डू ओनली द हेल्थ असाइनमेंट्स. एंड इफ इट इज ओनली फॉर द मनी, तो मनी के हमने 3 चैप्टर्स किए हैं, तो आप मनी वाले चैप्टर्स के सारे असाइनमेंट्स कर सकते हो. एंड डू इट कंटिन्यूअसली फॉर एटलीस्ट 10 days, मिनिमम 10 days. 10 days तक जब आप उसको करोगे, रोज जो उसकी 3 एक्सरसाइजेस है, तीनों को अगर आप रोज करोगे फॉर 10 days, you will see magic happening in you. And if it is about relationship, तो हमने रिलेशनशिप के ऊपर 2 चैप्टर्स किए हैं, आप उसकी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. एंड अगर आप करियर को लेके करना चाहते हो, तो आप अपने करियर वाली जो हमारी मैजिकल मॉर्निंग है, एंड जो मैजिकल टू डू लिस्ट है, और हाउ टू प्लान योर डे,
or how to be pay gratitude at work. आप उन 3-4 chapters की सारी exercises कर सकते हैं, and you will see magic. Whichever area you want to transform, you can pick those exercises, those assignments, and keep doing them every single day, continuously for 10 days at least. 10 days में कुछ होता है, कुछ shift होता है, good. अगर नहीं होता तो continuously keep doing it. Do it for a month. And you will see things shifting. Relationship में you will see people's behavior changing towards you. आप exercises अपने लिए अपने यहाँ कर रहे हो और लोगों की vibrations आपकी तरफ change हो जाएंगी. उनका behavior आपकी तरफ change हो जाएगा. And this magic keeps happening every time I do it. And I don't know whether I shared with you, like, I think I shared about my ex-boss. Like, she was one person, like, she herself said, after the retirement, I had, she invited me at her place. She had some get together and all. She was telling her friends that मैं बहुत ही खड़ूस boss थी. And she was the only person who could handle me. It was all because I was practicing magic. Because I was writing gratitudes for her every single day. I wrote it for 1 week and things changed. Yeah. So you can also try it. So आपको जिस भी area में अपनी life में transformation चाहिए, आप उसके लिए concentrated gratitude कर सकते हैं. Right? So this is how I wanted you to keep this alive in your life. अगर इस प्रोग्राम को आपने अटेंड किया है, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, आप कोई भी प्रोग्राम अटेंड करते हो ना, उससे कुछ ना कुछ ले जाके लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करो. इम्प्लीमेंट करोगे तो याद रहेगा, नहीं करोगे तो वो कुछ आया और चला गया. यहाँ पे इतना कुछ हम भरते जा रहे हैं, पर जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, वो नहीं रहेगा हमारी लाइफ. वो ज्ञान की तरह बस दिमाग में पड़ा रहेगा और हमको we become arrogant. देखा मुझे कितना कुछ पता है, पर क्या जिंदगी में फर्क पड़ा? जिंदगी में फर्क तभी पड़ेगा जब उसको आप प्रैक्टिस में लाओगे. सो आई विल अर्ज ऑल ऑफ यू कि जो भी एरिया आप अपनी लाइफ का ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, आप उस एरिया के जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, आप उसको करें. अगर आप चाहते हो तो इफ यू वांट, आई विल सेंड ऑल द असाइनमेंट्स फ्रॉम डे 1 से लेके अब तक की मैं सब भेज दूंगी. एंड but it will actually flood the WhatsApp group, so I would not like to send it. But in case you want it for any particular area of your life, you can send in a request and I will send it to you. If you want it privately to be sent to you, you can DM me and I'll send it to you directly. Right? So this is what I wanted to say, and thank you so much, Mavin and Consciously Positive, for giving me this opportunity to share whatever I know a little bit about gratitude and whatever I'm practicing to, contribute in your life. And you all have contributed so much by just being there and sending your vibrations to me. And whatever you have shared in the sessions has made a lot of difference to my life. So thank you so much, Shabana, for giving me this opportunity. And it's been great. And though it was a little longer journey, 6 months plus, but it was पता ही नहीं चला time का कैसे बीत गया 6 महीने. And it was wonderful meeting all of you. So thank you very much. Anybody wants to say anything or ask anything, can do that. Gigi, Yeah, Rajwin. thank you so much for inspiring me. Practicing gratitude. But I do practice gratitude, but every day when I practice gratitude, I'm going to attend one private session. My dad's taking me for medical hypnosis with his friend. So hopefully that helps five sessions of that, and all the daily practices of Mavin have been working tremendously fine with me. Wow, so wonderful. Thank you so much. And all the very best to you, Rajwin. And, Vaheguruji bless you with
lot of joy and happiness, and keep spreading that smile. Hopefully by the medical hypnosis, some of my health problems can improve. Yeah, definitely they will improve. Go with that intention. Go with that intention. And when you enter that, that person's chamber or room, just before entering, say thank you for the magnificent outcome of your session, and it'll definitely bring a lot of joy. And It's actually your session as well, because this is the first time I'm trying. So I hope everything works out for me, and I hope to get one or two steps on my own. But that will never happen. That will happen after maybe 10 sessions. But from what I've learned from you is gratitude, count your blessings, and be powerful, be unstoppable. Life is full of miracles yes, it and is. so much more. We all have learned so much from you. Shabana, Nupurji, Jagjit, thank you. And Thank, everybody, everyone, trainers, thank you. Every day I look forward to be with all of you. Thank you. thank you. Thank you so much, Rajvin. Yeah, good morning to everyone. So I logged in a little late, but it's really आप जैसे बताते हैं ना, like mother delivers to a child. So that's how it goes, and it works definitely. बाकी मुझे 1-to-1 में ना मनी का थोड़ा भेज दीजिए. ठीक है, आप मुझे WhatsApp कर दीजिएगा, मैं आपको भेज देती हूँ. ठीक है, thank you so much. Thank you so much. Anybody else wants to say anything? Yes, I want to say thank you so much, Jagjit, for leading it so wonderfully. And we don't want these sessions to end. So you have to figure out how you can help us to be more in touch with gratitude. And the way you give the assignment and we do it, it really makes a lot of difference. So thank you. Yeah, and assignment also, few assignment like the key topics, I think if you can share in the group, I think many people. Shabana, I totally agree with you, Miss Shabana. Yeah. Because my life and your life has been transformed as well. Yes. And hopefully blessings come to Nupurji as well. Thank you so much, everyone. Thank you. I think Kamalji ji want to say. Yeah, I am also practicing whatever ma'am has told us. And वो क्लू वाला ना, मैं मतलब मेरी डॉटर की अभी मैरिज नहीं हुई तो मैं सत्संग पे गई थी, तो वहां पे ना अचानक ही मेरा ना उन पे ध्यान जा रहा था जिन लड़कियों ने चूड़े पहने हुए थे. एंड आई वाज रिमेम्बरिंग एट दैट टाइम, मैंने कहा या क्लू द मैजिक, यू नो. बहुत सारी देखी मैंने ना, कुछ 8-10 देखी मैंने तो. और वो लड़कियां सुंदर भी बड़ी लग रही होती हैं, यंग होती हैं, तो मैंने कहा वाओ कितनी प्यारी लग रही हैं, अच्छी. तो ये क्लू द मैजिक अब मैं कई बारी कुछ चीजों जो हमारे पास नहीं होती या हम मिस करते हैं तो वो हम, और जैसे बैंक तो मेरे रास्ते में, मैं कहीं भी जाऊं मेरे रास्ते में बैंक तो आता ही आता है, तो उसको देख के मनी के लिए थैंक यू. कभी कभी ऐसा होता है कुछ सोच रहे होते हैं तो निकल जाते हैं, फिर ध्यान आता है ओह बैंक निकल गया, याद नहीं रहा. तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. ऑफ कोर्स वो 10 ब्लेसिंग्स भी लिखती हूँ मैं रोज, और कभी कभी कुछ नहीं समझ आता तो अपने आप को ही थैंक यू बोल देती हूँ, अपने बॉडी पार्ट्स को, कि मैं उठ पाई सुबह, ये किया वो किया. सो यस, प्रैक्टिसिंग इट. और लाइफ में बहुत अच्छा सा शिफ्ट आया है. किसी से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आई एम एबल टू फॉरगेट इट नाउ. पहले होता था 3-4 दिन तक दिमाग में चलता रहता था, अब नहीं, बस रात को लेटे उसको किया, उसको सुबह एक बारी मेडिटेशन में किया, गॉन. अब नहीं आता. और अभी किसी टाइम अचानक कुछ याद आ भी जाए तो आई स्टार्ट सेइंग थैंक यू या वाहिगुरु, तो एकदम दिमाग शांत हो जाता है. तो लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कभी दूसरों को हमारा व्यवहार नहीं अच्छा लगता या कोई बात नहीं अच्छी लगती, तो वो अब बड़ा जल्दी चला जाता है. अब वो दिमाग में नहीं रहता, मतलब हम अपने आप से अंदर से शांत और खुश महसूस करते हैं बड़ा. Yeah. It all is because you are practicing it, because तभी मैं कहती हूँ जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही जिंदगी ट्रांसफॉर्म. नहीं प्रैक्टिस करते हैं हम भी, मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ.
कभी कभी कुछ किसी दिन बहुत बिजी हो जाती हूँ तो याद नहीं रहता, तो फिर भी ऐसे ही बैठ के, जैसे आपने बोला कि बैठ के ही याद कर लो कि ये उसने, यार ये कितना अच्छा कर दिया था उसने, कितना अच्छा रहा, इट वाज अ गुड, ये सबकी हेल्प थी, या किसी की हेल्प को हम खाली मन में ही याद कर ले कि इस बच्चे ने ये करा था बहुत अच्छा करा, उसने वो करा था बहुत अच्छा करा. Yeah. या बट आई ट्राई टू राइट डाउन डेली. Good. Thank you so much, Kamal, for sharing that. थैंक यू. Anyone else want to share? Uma ji, Neelam ji, Samina ji, Minu ji, And Jagjit ji, last comment from me. and of course, Jagjit. First, you have made me transformed. Every Tuesday I will see you, and then I will learn how to beautify myself. And the other, who was that? There was one more trainer of ours. She was talking about beauty on Women's Day. I've seen both of you, and also Nupurji. So make me radiant, radiant, and thank you for making me radiant. I feel the glow in my life every day despite my pain of endometriosis. You are giving a lot of power to endometriosis. Don't talk about it much. And don't talk about your pain. Just talk about the good health and good things in your life. And this But thing will take care of itself. But by attending your session, it's come down to 1 cm. Wow, good. So, If you start paying gratitude to it, it will just disappear. but there's no cure. So I'll keep chanting, going to Gurdwara like as usual, and I keep chanting that it's no more. So it's fine. So you don't have to say it is no more, because no, you're not supposed to use. You have to say I am healthy, and my body is healthy. Because if it is no more, you will be healthy, right? Yes. Yeah. So you have to focus on what is the end result. What is it that you want? Oh, outcome. Yeah. Yeah. The outcome is that you want to be healthy. So you just have to say thank you, Vaiguruji, for keeping me healthy, giving me healthy body. That's all you have to do. Yeah. And you can always keep doing this if you're sitting and lying down. You can just put your hand on your abdomen and just give a lot of love to your body. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you to everybody for being so patient with me. No, thank you so much, Jagjit, for really making our life full of gratitude. Yeah. Thank you so much. Thank you.